Good morning, students. Today we are doing chapter 2 of Civics Constitutional Design. In chapter 1st, you have read about democracy. The rulers are not free to do what they like in democracy. There are certain basic rules that the citizen and the government have to follow. And for this, they need a constitution. As the supreme law of the country is the constitution. The constitution determines the right of citizens, the power of the government, and how the government should function. So, in this chapter, we will study about the constitution, democrat. First of all, we will have a look of democratic constitution in South Africa. All of you are aware about the policy of apartheid in South Africa. And the chapter starts with the wording of Nelson Mandela. According to him, कि ना तो उसे ब्लैक का डोमिनेशन चाहिए ना वो वाइट के डोमिनेशन के लिए फाइट कर रहा है. वो ऐसी कंट्री सोसाइटी चाहता है जब जहाँ पर सब मिलकर इकट्ठा रहें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके पास हो, ना ब्लैक वाइट का डोमिनेशन करें ना वाइट ब्लैक का डोमिनेशन करें. दिस वॉज नेल्सन मंडेलाज बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला के अगेंस्ट ट्रीजन का आरोप लगाया था. ट्रीजन का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में भी आया था ये वर्ड. ट्रीजन मीन्स देशद्रोह. लास्ट में आपकी जो ग्लोसरी है उसमें भी इसका मीनिंग है. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. Now, what is apartheid? Apartheid means racial discrimination which was practiced in South Africa. वहाँ पर क्या होता था? ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था. ब्लैक के लिए अलग फैसिलिटीज़ थी, वाइट के लिए अलग सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलोड होती थी. He spent the next 20 years in South African most dreaded prison Robben Island. और इस ट्रीजन के आरोप में उसको 28 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका की बहुत ही खतरनाक जेल में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा. देशद्रोह का उसके अगेंस्ट आरोप लगाए क्योंकि वो अपार्थाइड की पॉलिसी के अगेंस्ट था. गवर्नमेंट की अपार्थाइड की पॉलिसी को अपोज कर रहा था. अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल. So, struggle against apartheid. What do you mean by apartheid? Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. ये racial discrimination था जो कि South Africa में होता था. The white European imposed this system on South Africa. In South Africa, white were in minority and black were in majority, but these white Europeans, they imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force. बेटा जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना कंट्रोल किया हुआ था और वो यहाँ पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उसी तरीके से यहाँ पर यूरोपियन जो कंट्री है उनमें अफ्रीका पर अपना कंट्रोल किया. एंड इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे इन्होंने इंडिया पे किया हुआ था. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स had settled in South Africa and became the local rulers. बट इंडिया में तो वाइट इतनी मेजोरिटी में नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में वो वहाँ पर सेटल हो गए. द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. और यहाँ पर ऑब्वियसली वो वाइट कलर में थे और वो ब्लैक कलर में थे, तो यहाँ पर उन्होंने लोगों को ब्लैक और वाइट कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population were called blacks. Now, who were blacks? The native people of South Africa. They were black in the color, and the population of them was 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored. So you can see that there were 3 types of people colored: white people, black people, and the people those who were mixed in color, they were called colored. And people who migrated from India, जो लोग इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ पर गए थे वो ना तो पूरी तरह से ब्लैक थे ना पूरी तरह से वाइट थे, उनको क्या कहा गया? कलर्ड पीपल. सो आपने देखा 3 तरह की कैटेगरी वहाँ पर होगी: ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नोन वाइट्स एज इन्फीरियर्स. वाइट
पीपल जो है सब नॉन वाइट पीपल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, और सबसे खराब बात क्या थी कि उनको वोटिंग राइट भी नहीं था। जैसे आपने अभी डेमोक्रेसी वाला चैप्टर देखा, उसमें आपने क्या देखा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। और यहाँ पर नॉन वाइट्स को वोट डालने का राइट ही नहीं था, केवल किसको वोट डालने का राइट था, वाइट्स को। द सिस्टम वॉज particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. और क्या था वहाँ पर, सेग्रीगेशन की पॉलिसी होती थी, वाइट लोगों के लिए अलग एरिया होता था, ब्लैक के लिए अलग। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, केवल परमिट उनको मिलता था तभी वो वाइट एरियाज में काम कर सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, all these things were separate for the white and the black. And this was called segregation. So, what do you mean by segregation? All the facilities, all the public places, all the things were separate from for white, like buses, trains, parks, toilets, all these things were separate for black and white. This is called the policy of segregation. जैसे इंडिया में बहुत टाइम पहले लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, लोअर कास्ट के लिए अलग वेल, टेम्पल वगैरह सब अलग होते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और इवन ब्लैक को ये राइट भी नहीं था कि वो अपनी इस टेरिबल सिचुएशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। और अब उन्होंने, ब्लैक ने, कलर्ड पीपल, इंडियन ने, सब ने मिलकर इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। क्या रास्ता अपनाया उन्होंने? दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक, मार्चेस उन्होंने निकाली, स्ट्राइक की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, what is ANC? African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. इनमें से ANC एक ऐसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अम्ब्रेला क्या करता है? सबको प्रोटेक्शन देता है, हर प्रॉब्लम से बचाता है, बारिश से बचाता है। उसी तरीके से ये ANC थी जिसने इसके अगेंस्ट लड़ाई करी, इस सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट। This included many workers, unions, and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid. Even black ही नहीं, कई ऐसे white लोग भी जो इस अपार्थाइड की पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी इसमें एक स्ट्रगल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेशियस्ट। कई कंट्रीज को भी लगा कि ये अपार्थाइड की पॉलिसी जो है सही नहीं है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, तो वो भी उसके अगेंस्ट थे। बट द वाइट रेशियस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन वाइट गवर्नमेंट ने अपना ब्लैक पीपल को और कलर्ड पीपल को टॉर्चर करने का सिस्टम कंटिन्यू रखा। सो towards a new constitution. As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repressions. जब लोगों के प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ गए तो उनको अब रियलाइज़ हुआ कि अब और ज़्यादा लंबे समय तक ब्लैक पीपल को सप्रेस करके नहीं रखा जा सकता है। द वाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसी, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। डिस्क्रिमिनेशनरी लॉज वर रीप्लेडेड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। और जो रिस्ट्रिक्शंस थी मीडिया पर, जो थी पॉलिटिकल पार्टीज पर थी, वो सब हटा दी गई। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल एज अ फ्री मैन। स्टार्टिंग में आपने चैप्टर में देखा कि 28 years तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था, उसके ऊपर ट्रेजन, देशद्रोह का आरोप था। अब फाइनली 28 years के बाद, लोगों के इतने प्रोटेस्ट के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. और finally वहाँ पर न्यूली डेमोक्रेसी
स्टार्ट हुई, द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। पहले आपने देखा कि नो वाइट को तो वोट डालने का ही राइट नहीं था, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट बनती थी वो किसकी बनती थी, वाइट पीपल की ही। अब यहाँ पर अपार्थाइड की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी कि हर किसी को, ब्लैक को भी, वाइट को भी और कलर्ड को भी, सबको वोट डालने का राइट था। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन। अब वहाँ पर ये सिचुएशन आई कैसे? वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी, इलेक्शन हुए, सबको वोट डालने का राइट था। ये न्यू इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वहाँ के उनके वर्डिंग्स है। आफ्टर द emergence ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड विद इन वाइल इन पावर। जब यहाँ पर नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में आई तो उन्होंने, ब्लैक लीडर्स ने लोगों को अपील की कि वो वाइट्स को, उन्होंने जो एट्रोसिटीज़ उनके साथ की उनको भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वीमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि हम एक नए साउथ अफ्रीका की शुरुआत करते हैं जिसमें इक्वलिटी हो, कहीं भी रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वलिटी मिले। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रिचुअल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पीछे वाली सारी बातों को भुलाकर, वो पार्टी जिन्होंने पास में हमारे साथ इतने ब्रूचुअल एक्शंस किए, लाखों लोगों को मारा, ब्लैक लोगों को और कलर लोगों को, हम उन सब बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं और मिलकर बैठकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब यहाँ तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा थी। इंडिया में वाइट ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर कंट्रोल किया था, ब्रिटिशर्स चले गए थे तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था अपनी ही कंट्री के लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर तो वाइट वहीं पर थे और उनके साथ पीछे की सारी बातों को भूल कर फिर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट थी। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। कितना टाइम लगा उनको? 2 years के डिस्कशन के बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव to its citizens the most extensive right available in any country। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को कई ऐसे राइट्स दे गए जो शायद ही किसी कंट्री में अवेलेबल हो। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डिमॉन, कि यहाँ पर ना तो किसी पर्सन को एक्सक्लूड किया जाएगा और ना ही किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएंगे। सबको क्या होगा? दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, कि पास्ट में उन्होंने क्या किया है, जो हुआ है वो सबको भूल कर सबको यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी। द प्रियम्बल टू साउथ अफ्रीका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल? प्रियम्बल का मीनिंग भी आप पीछे लास्ट में ग्रॉसरी में देख सकते हैं। प्रियम्बल में वर्डिंग्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें होती हैं उसकी फिलॉसफी से रिलेटेड वर्डिंग्स होते हैं, इंट्रोडक्शनरी टाइप से। So you have seen that in South Africa there was the policy of apartheid, segregation, and under the leadership of Nelson Mandela, people protested against this, and finally South Africa they formed a new constitution, and according to that all of people are equal. There was no discrimination on the behalf of caste, religion, and gender. The South African constitution inspires democrats all over the world, और सारे वर्ल्ड में सब जो लोग थे वो इन आइडिया से इंस्पायर्ड हुए। अ स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy, कि जो स्टेट्स अब तक नहीं थी डेमोक्रेटिक वो भी इस डेमोक्रेटिक मॉडल से इंस्पायर हुई थी। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर to transform bitter experience into the binding glue of rainbow nation। किस चीज़ ने ये सब पॉसिबल बनाया?
पास्ट को भूलकर एक, जैसे रेनबो के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं, उसके अंदर वो सब चीज़ों को, एक रेनबो डिफरेंट टाइप के कलर्स को अपने अंदर बांधे हुए होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को, डिफरेंट कलर के लोगों को, सारे पुराने एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस को भूल कर अपने आप के लिए एक नए नेशन की शुरुआत की। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, वर्डिंग्स के में मंडेला ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. कि हम हमारे उस पास्ट की, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ब्रूचुअल एक्शंस थे, रिप्रेशन था, हम सबको उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इन टू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाई ऑल इट्स पीपल. कि ये जो है चार्टर, इसका हर लोगों के द्वारा इक्वली शेयर किया जाएगा. अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वीमेन एंड मैन. कि ये कंट्री पूरी तरह से हम सब के लिए है, ब्लैक और वाइट के लिए, मैन और वीमेन के लिए. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी स्थान नहीं है. तो यहाँ तक आपने देखा पूरा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कोई भी कंट्री है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और कैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब. अब नेचर ऑफ कॉलोनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, लीडरशिप, ये सारा आपने बीच में पीछे पास में देखा है. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, you can call. Bye.